Okay, Ashish, ready? Now the scriptures portion that we read today, We can't hear you, Ashish. I can't hear you, Ashish. Yeah. The scripture portion that was read today, It talks about two people, Elijah and Elisha. उसमें एलिया और एलीशा दो लोगों की बात हो रही है. Now, Elijah took his cloak and struck the water of Jordan, and the Jordan divided into two. और एलिया ने अपना जो वस्त्र की जो चादर थी उससे उसने यरदन नदी पे उसने वार किया और उसमें दो भाग उसके हो गए. So they crossed Jordan to the other side and were walking together talking. और फिर उन्होंने जो यरदन नदी थी उसमें उन्होंने उसको पार किया और बातचीत करते हुए वो उसको पार कर रहे थे. And suddenly there was a chariots of fire came down and separated them and took Elijah to heaven. और फिर वहां पर आग रूपी जो घोड़े थे रथ थे वो आ गए और फिर एलिया को वो ले गए ऊपर. Now Elisha came back. He took hold of the cloak that fell from Elijah. और जो एलीशा था वो वापस आया और जो चद्दर उसके ऊपर से गिरी थी वस्त्र की वो उसने उठा ली. He came close to that river and stuck the river with that cloak and said, "Where now is the Lord, the God of Elijah?" Can you repeat that, uncle, please? Yeah, he came close to the river and वो stuck नदी के पास नदी के नजदीक आया and he stuck the water with that cloak और फिर उसने उस पानी में जो था उस चद्दर से उसने वार किया and said, "Where now is the Lord, the God of Elijah?" और उसने कहा कि अब जो एलिया का जो परमेश्वर है वो कहाँ है. Now Elisha had been with Elijah for 6 years before Elijah was taken away. और 6 वर्षों से ये दोनों साथ में थे. And Elisha heard and saw whatever Elijah did during his lifetime. और एलीशा ने सुना और देखा जो कुछ भी एलिया ने किया था अपने जीवन में. Elijah was just a nomad, और जो एलिजा था वो खाना बदोश था. but he challenged the king and stopped the rain for 3.5 years. लेकिन उसने वहां के राजा को चुनौती दी थी और बरसात को भी उसने रोक दिया था. He brought back to life a dead boy. एक मृत लड़के को वो वापस जीवन दिया था उसने. He increased the widow's flour and oil. और जो विधवा थी उसका आटा और उसका तेल जो था वो उसने उसको बढ़ा दिया था. 3 times he brought fire from heaven. 3 बार वो स्वर्ग से उसने आग भी बरसाई थी. And then he brought back the rain. और फिर वो बरसात को वापस भी लेके आया था. He heard the voice of God. उसने परमेश्वर की आवाज को सुना था. Divided Jordan. यरदन नदी का उसने विभाजन किया था. And he was taken away in a chariot of fire to heaven. और इस आग रूपी रथ में वो आसमान में उठा लिया गया था. Now Elisha saw and heard of all about this. एलीशा ने ये सब देखा और ये सब उसने अनुभव किया. Elisha also knew Elijah did not have any power on his own to do any of these things. और एलीशा को ये भी मालूम था कि एलिया के पास अपना कोई शक्ति नहीं थी ये सारे कार्य करने के लिए. Elisha knew it was the God who was with him enabled him to do all these miracles. और एलीशा को मालूम था कि जो परमेश्वर एलिया के साथ है उसके सामर्थ्य से एलिया ये सब कार्य कर रहा था. In a sense, Elijah revealed God through his life. और देखा जाए तो एलिया ने परमेश्वर को प्रदर्शित किया अपने जीवन से. Now Elisha want to have the same God in his life. और अब जो एलीशा है वो चाहता है कि यही परमेश्वर जो है वो उसके जीवन में भी आ जाए. Now he says, "Where now is the Lord, the God of Elijah?" अब वो कह रहा है कि जो एलिया का परमेश्वर जो है वो कहाँ है. So I just would like to see today to Elijah's life and find out what really made him to do all these miracles in his life. तो आज हम देखना चाहते हैं कि उसके जीवन में क्या क्या हुआ जिसके कारण वो इन सारे आश्चर्य कर्मों को करने पाया. There must be something inside that made him to do everything, all this outside work. कुछ उसके अंदर जीवन में भीतर
जीवन में रहा होगा जिसके कारण वो बाहरी जीवन में ये सारे कार्यों को कर पाया। Elisha was able to see what he was outside. और जो एलीशा था वो ये देखने पा रहा था कि उसके जीवन में बाहर से क्या हो रहा है। But there must have been something inside Elijah's life that made him to do all these miracles in his life. लेकिन एलिया के जीवन में अंदर कुछ रहा होगा जिसके कारण वो सारे आश्चर्य कर्म और इतने कार्यों को करने पाया। When I was studying Elijah, I was able to see three major things that he had in his life. और जब मैं एलिया के बारे में अध्ययन कर रहा था तो तीन मुख्य बातें उसके जीवन में मेरे सामने आई। His prayer, his faith, and his obedience. पहला तो उसका प्रार्थना और उसका विश्वास और तीसरा उसकी आज्ञाकारिता। Now please turn to the Bible portion, 1 King chapter 17 verse 1. 1 King chapter 17 verse 1. Someone read please. Now Elijah the Tishbite, who was the settlers of Gilead, said to Ahab, "As the Lord, the God of Israel lives, before whom I stand, surely there shall be neither dew nor rain these years except by my word." Read it, please. कुशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। Now here Elijah not only challenged the king, but queen and the whole nation. और यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिया ने ना केवल राजा को चुनौती दी लेकिन रानी को और पूरे साम्राज्य को उसने चुनौती दे दी। The king is the king Ahab. जो राजा है वो राजा अहाब है। During his time, he and his whole nation worshipped Baal as their god. और वो और उसके जो पूरा राज जो लोक प्रजा थी वो बाल देवता की आराधना करते थे। They believed Baal was the god storm god who brings rain and prosperity. और वो तो ये सोचते थे कि जो बाल है वो ये आंधी तूफान बरसात का देवता है जो बारिश करता है। But here comes an ordinary man from a small place and says, "Unless I say so, there won't be any rain or dew." और यहाँ पर एक साधारण सा मनुष्य आता है और कहता है कि जब तक मैं ना कहूं तब तक बरसात ना होगी। He is challenging their belief and their God as well. और यहाँ पर वो उनके राजा के विश्वास को और राजा के जो राजा जिन देवी देवताओं को मानते थे उसको वो चुनौती दे रहा है। Yeah, they believe it. Baal is the god who brings the rain and prosperity. But here comes an ordinary man and say, "Unless I say, there will be no rain or dew." क्योंकि वो लोग तो मानते थे कि जो बाल है वो बरसात कराता है और समृद्धि लाता है, लेकिन यहाँ पे एक साधारण मनुष्य आके कह रहा है कि जब तक मैं ना कहूं तब तक बरसात ना हो। But note that word. He says, "Except at my word." और वो कह रहा है कि जब तक मैं ना कहूं तब तक। He sounds like as if he has the power to stop the rain. और वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि उसके पास सामर्थ्य है बरसात को रोकने की। But if you read James chapter 5 verse 17, it says, Elijah was a man just like us. और याकूब 5:17 में लिखा है कि जो एलिया था वो एक मनुष्य था हमारे ही तरह। He was an ordinary man just like us. हमारे ही तरह वो एक साधारण मनुष्य था। According to that word, he did not have any special power to stop the rain. और इसको अगर लेके चले तो उसके पास कोई विशेष सामर्थ्य नहीं था कि वो बरसात को रोक पाता। But how come that he used that word? Except at my word, there will not be any rain. लेकिन ये शब्द वो कैसे कह पाया कि जब तक मैं ना कहूं तब तक बरसात ना होगी। In Lucknow, when you drive around, you see many people break all traffic rules. लखनऊ में जब आप गाड़ी चलाते हैं और आप देखते हैं कितने लोग हैं जो यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं। They will park on the no parking zone. जहां नो पार्किंग है वहां पे पार्किंग करेंगे। They always jump the red light. और जो लाल बत्ती है सिग्नल है उसको पार कर जाते हैं। But in case by chance if any police caught them, लेकिन अगर कभी पुलिस उनको पकड़ ले they will immediately take a phone and call somebody there in the big office. तो फोन लेके किसी को फोन करेंगे, किसी अधिकारी को फोन करने की कोशिश करते हैं। The next moment the call will come to the police officer, say you release him. और फिर हो सकता है अधिकारी का फोन आ जाए इनके पास कि भाई इनको जाने दिया जाए।
The person who jumps or breaks all the traffic rule does not have any power to do that. और जिस व्यक्ति ने यातायात के नियम को तोड़ा उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं था But he does all these things because he had some relationship with somebody who is in the power. लेकिन वो इसलिए करता है क्योंकि कोई तो है जिसके साथ उसका संबंध है, जिसके पास के सामर्थ्य है। He knew I have somebody in the government office, he can always involve and get me outside. और वो ये जानता है कि सरकारी में कोई तो अफसर है मेरे पास जान पहचान का, जिसको मैं जिसके मदद से मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। He doesn't have the power, but he had the power relationship with somebody who had the power. तो उस व्यक्ति के पास तो सामर्थ्य नहीं है, लेकिन एक शक्तिशाली व्यक्ति के साथ संबंध अवश्य है इनका। Likewise, Elijah did not have any power on his own. उसी प्रकार से एलिया के पास अपना कोई सामर्थ्य नहीं था, But he had a relationship with someone who had all the power in the universe. लेकिन उसका एक संबंध था ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके पास सारा सामर्थ्य था। And in his power and in his strength, he was able to say, unless I say so, there will not be any rain. और उसकी शक्ति और उसके सामर्थ्य में ही वो ये कह पाया कि जब तक मैं ना कहूं तब तक बरसात ना होगी। No, he was an ordinary man with an extraordinary relationship with God. और वो एक साधारण मनुष्य था, लेकिन एक असाधारण संबंध उसका था No, परमेश्वर। it's very important for any person if you want to involve in God's ministry. और ये बहुत आवश्यक है किसी व्यक्ति के लिए जो प्रभु की सेवा में आना चाहता है। When a person comes to involve in the missions, his main aim should be to build the deep relationship with God. और जब कोई व्यक्ति प्रभु के कार्य में आता है तो उसका एक विशेष लक्ष्य होना चाहिए कि प्रभु के साथ एक गहरा संबंध बनने पाए, So that his ministry will have not his power but God's power. ताकि जो सेवकाई है उसमें उसका नहीं लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य होना चाहिए। So here Elijah had deep relationship with God. So God's power was revealed in his life. तो यहाँ पर जो एलिया है उसका एक गहरा संबंध था प्रभु के साथ, और वो जो संबंध का जो सामर्थ्य था, ताकत थी परमेश्वर की, वो उसके जीवन में प्रदर्शित हो रही थी। He had that kind of relationship with God because he honored God's word. और उसका ऐसा संबंध था प्रभु के साथ क्योंकि वो प्रभु के वचन का आदर करता था। Someone did please James chapter 5 verse 17. James chapter 5 verse 17. याकूब 5:17। Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the earth for 3 years and 6 months. एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। So it says he prayed and the rain was stopped. That's what it says. और लिखा हुआ है कि उसने प्रार्थना करी और तब बरसात रुक गई। It was not an instant miracle. और ये एकदम से होने वाला आश्चर्य कर्म नहीं था, Yeah, it was an answer to his prayer. ये जो था वो उसकी प्रार्थना का उत्तर था। The prayer was offered with a deep relationship with God. और गहरा संबंध प्रभु के साथ था जिसमें हो करके इस प्रार्थना को मांगा गया था। No, he prayed in such a way. It says he prayed fervently. That's what he says. He prayed and God answered. और लिखा है गिड़गिड़ाते हुए उसने प्रार्थना करी और प्रार्थना का उत्तर प्रभु ने दिया। Now turn to 1 King chapter 17 verse 17 to 22. We don't need to read this portion. इसको पढ़ेंगे नहीं, I'll just explain what is there in the portion. It will take a lot of time. मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे इसमें क्या लिखा है। No, God sent Elijah to a widow in Sarephat. और सरेफात एक स्थान पर परमेश्वर ने एलिया को एक विधवा स्त्री के पास भेजा, Because there was famine, there was no food, people are struggling because there was no rain. क्योंकि बारिश नहीं थी, अकाल पड़ा हुआ था और खाना नहीं था, लोग संघर्ष कर रहे थे। So God said, "Go to the Sarephat widow, and she will feed you." That's why He sent Elijah to that place. प्रभु ने कहा कि एलिया से कहा कि सरेफात में जो एक विधवा है वहां जाओ, वहां पे तुम्हें खाना मिल जाएगा। While he was there, the son of that widow died, जब वो वहां पे था तो उस विधवा का जो पुत्र था वो मर गया। and that lady came and told him, "Oh man of God, have you come here to remind me of my sin and to और kill my उस- son?" Yeah. और उसने कहा कि
उस स्त्री ने कहा, क्या तू मुझे मेरे पापों को याद दिलाने के लिए आया है कि मेरा पुत्र मुझसे मृत्यु हो गई? Now Elijah took the child boy and went to the upper room, and then he says he cried out to God. और वहां पर एलिया जो था वो उस बच्चे को एक छोटे कुटीर में ले गया, कमरे में, और प्रभु के सामने रोने लगा। Somebody read please verse 20 to 22. Verse 20 to 22. Called to the Lord and said, O Lord my God, have you also brought calamity to the widow with whom I am staying, by causing her son to die? Then he stretched himself upon the child 3 times, and called to the Lord and said, O Lord my God, I pray you, let this child's life return to him. The Lord heard the voice of Elijah, and the life of the child returned to him, and he revived. तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ, इस पर भी विपत्ति ले आया है? तब वो बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिया की ये बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वो जी उठा। It says he prayed and God answered. और लिखा है कि उसने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उत्तर दिया। It was not an instant miracle. और ये एकदम से होने वाला आश्चर्यकर्म नहीं था। No, again he prayed to God to bring back the boy alive. God answered his prayer and gave him the life back. उसने प्रार्थना करी कि वो जो लड़का है वो जीवित हो जाए फिर से, और प्रभु ने उसका उत्तर दिया। So whatever he did, most of his miracles came out of his prayer. और उसके जो अधिकतर जो आश्चर्यकर्म उसने किए वो प्रार्थना के बाद ही वो संभव हुए। Now we look at one more thing. 1 King chapter 18 verse 42. Someone read please verse 42. 1 King chapter 18 verse 42. So Ahab went up to eat and drink, but Elijah went up to the top of Carmel, and he crouched down on the earth and put his face between his knees. तब आहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। It says bend down and put his head between his knees. और लिखा है कि झुक के घुटनों पे उसने अपना चेहरा घुटनों में कर लिया। Don't try it, you won't be able to do it. आप ऐसा कर मत, कोशिश करिए, मुश्किल हो जाएगा। As for big people, it is very, very hard. We cannot put our head between our knees. और जो बड़े लोग हैं वो बहुत मुश्किल है अपने सर को घुटनों के बीच में करना। But you know, small children can do it. लेकिन छोटे बच्चे कर सकते हैं। That actually means Elijah started his prayer life when he was a young boy. और इसका मतलब ये हो गया कि जब वो छोटा बालक रहा होगा तब से उसने अपना प्रार्थना का जीवन शुरू किया होगा। Because otherwise, it's very, very impossible to put your head between your knees. नहीं तो ये असंभव है अपने सर को झुक के अपने घुटनों के बीच में करना। Because we don't know much about Elijah's background. हमें एलिया के जो बीता समय उसके बारे में तो इतना नहीं मालूम। But we can safely believe that he developed his relationship with God as a young boy. लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एक जवान बालक के समय से ही उसने प्रभु के साथ अपना संबंध स्थापित किया होगा। We learn 2 major lessons through his prayer, through this prayer. और उसकी प्रार्थना को अगर देखें तो 2 मुख्य बातें हम सीखते हैं। Number 1, he shut himself to God. पहले ये कि उसने प्रभु के साथ वो एकांत में चला गया। Look at his posture. He didn't want to see anything or didn't want to hear anything. और वो किसी एकदम अलग चला गया, किसी से मिलना नहीं था और कुछ और वो सुनना नहीं चाहता था। That posture also sign of humility. और ये जो उसने किया तरीका, ये भी एक विनम्र होने का एक तरीका है। He did not want to see anything. He did not want to look at anything, but humble himself before God. ना कुछ वो और देखना चाहता था, ना कुछ और बात सुनना चाहता था, लेकिन वो प्रभु के सामने विनम्र होना चाहता था। Now shut yourself before God. प्रभु के सामने आके शांत हो जाइए। Now sometimes when we go to pray, we hear so many noise. कभी-कभी जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो इतना सारा आवाजें, शोर इधर-उधर से आता है।
I'm not talking about outside noise, but मेरा inside our mind. और मेरा मतलब ये नहीं कि जो आवाजें बाहर से आती हैं, लेकिन जो हमारे अंदर मन से आवाजें आती हैं। The moment you kneel down and close your eyes, you are blocked with so many things in your mind. और जब भी प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं, आंख बंद करते हैं, इतनी सारी चीजें जो मन में है वो सब आने लगती हैं। Most of the things it comes from the things that we already put in our mind. और वो उन्हीं से आती हैं उभर के, जो पहले से हमारे दिलो दिमाग में जो बातें चल रही हैं। No, we put so many unnecessary things in your mind that disturbs our prayer life. और इतनी सारी अनावश्यक बातों को अपने मन में डाल देते हैं, जिससे हमारा प्रार्थना करना मुश्किल हो जाता है। So if you want to really have beautiful, nice prayer life, avoid putting a lot of unnecessary things in your mind. और चाहते हैं कि आपका एक अच्छा सुंदर प्रार्थना का समय बीतने पाए, तो अनावश्यक चीजों को अपने मन में मत डालिए। We put a lot of unnecessary things through the things that we watch, through the things we heard. Okay. और बहुत सी अनावश्यक चीजें जो हैं वो हमारे मनों में आती हैं, उन चीजों से जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं। You know, 1 Peter chapter 4 verse 7 says, be clear-minded so that you can pray. और पहला पत्रस में लिखा है कि एकदम साफ मन से, साफ सोच से रहो, ताकि तुम प्रार्थना करने पाओ। Because unless we have clear mind, our prayer life will be disturbed. और जब तक एक साफ मन ना हो, तब तक हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। So don't avoid putting so many unnecessary things in your mind which will disturb your prayer life. इसलिए अनावश्यक बातों को मन में ना आने दें, जिससे आपका प्रार्थना करने का समय जो है वो नष्ट होगा। Shut yourself to God. Avoid hearing a lot of unnecessary noise from your mind. परमेश्वर के सामने एकांत में हो जाएं और अनावश्यक बातों को ना आने दे बीच में। Second thing is we see in his prayer is perseverance. दूसरी बात हम ये देखते हैं कि प्रार्थना में वो निरंतर लगा रहा। Someone read please 1 King chapter 18 verse 43. Verse 43. He said to his servant, "Go up now, look toward the sea." So he went up and looked and said, "There is nothing." And he said, "Go back 7 times." और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। Now Elijah when started praying, he told his servant to go and see if there is any rain, any sign of rain. जब एलिया ने प्रार्थना करना शुरू किया, तो उसने अपने सेवक से कहा कि जाके देखो बारिश हो रही है कि नहीं। But when he went and saw, he said there is no sign, nothing. जब सेवक ने जाके देखा तो कहा नहीं, बारिश का तो कोई चिन्ह नहीं है। And then he told you to go on second time. फिर कहा कि दूसरी बार जाके देखो, And he came and said nothing. और उसने कहा कि कुछ नहीं है। No, he went 6th time and came back and said nothing. 6 बार जाके लौट के आया सेवक और कहा कि कुछ नहीं है बाहर। You know, most of us at this point would have thought, no, it's not God's will for us to get the rain, so stop praying. और ऐसे बिंदु पे आके हम में से बहुत लोग शायद ये कहते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि बारिश हो, तो इसलिए प्रार्थना करना बंद कर दें, Probably we will stop praying also. और शायद प्रार्थना करना ही बंद कर दें। No, I'm not talking about rain. Any issue in our lives, when we pray for some time, we may think the answer is not coming through. We might decide to stop praying because we think, okay, God is not going to answer this prayer. और कोई भी मसला हो जीवन का, अगर उसका हम प्रार्थना कर रहे हो उत्तर नहीं मिल रहा, तो हम ये सोच सकते हैं कि अब ऐसा है, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, क्योंकि शायद प्रभु उसका उत्तर नहीं देगा। But not Elijah. लेकिन एलिया ने ऐसा नहीं किया। There was no answer, but he kept praying. उसको उत्तर नहीं मिला, लेकिन वो प्रार्थना करता रहा। He did not look at the circumstances. He looked only at God. उसने परिस्थितियों को नहीं देखा, उसने सिर्फ प्रभु की ओर देखा। Now, circumstance may say nothing. Many times when you pray, you say you won't be able to see that any favorable circumstances. और जब परिस्थितियों को देखते हैं तो आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, और जो परिस्थितियां हैं बिल्कुल भी हमारे अनुकूल नहीं है। You would feel that nothing is going to happen. आपको ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं होने वाला है। But my eyes should be always on God and God alone. लेकिन जो मेरी आंखें हैं वो परमेश्वर और केवल परमेश्वर की ओर ही लगी रहनी चाहिए, Because He alone is matter when you pray. क्योंकि वही एकमात्र इस बात ही से फर्क पड़ता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का वहां होना। Don't look at your circumstances. That doesn't matter at all. और परिस्थितियों को मत देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, Because only God matters because He is going to answer your prayer at any time. और उसमें सिर्फ परमेश्वर ही उस वक्त महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि वही प्रार्थना को उत्तर दे सकते हैं। Here Elijah did not look at the surroundings.
यहाँ पर एलिया ने आसपास नहीं देखा क्या हो रहा है, But when he saw only the negative things. और उसने जो देखा वो सिर्फ नकारात्मक बातें दिख रही थी। Only there was no positive thing. He cannot see anything or any sign of rain. और कोई भी सकारात्मक बात थी नहीं, कोई बारिश का कोई चिन्ह ही नहीं था, But he continued to pray. लेकिन वो प्रार्थना करता रहा। When you start praying for something, don't stop in between till you get a proper answer. और जब आप प्रार्थना करते हैं तो बीच में प्रार्थना को रोकिए मत, जब तक आपको उसका सही उत्तर ना मिल जाए। You pray to get it. और आप इसलिए प्रार्थना करें ताकि वो बात आपको प्राप्त हो। Don't pray as a duty. और ऐसा मत प्रार्थना करिए कि बस प्रार्थना करना ही। It is not a duty that we do every morning and evening, just go before God and say whatever you need to say and get out. और वो कोई ऐसा कार्य नहीं है जो सुबह शाम हमको करना ही है, बस करके खत्म कर दिया। We are praying to get it from God. और हम प्रार्थना कर रहे हैं इसलिए ताकि वो बात हमें प्राप्त हो परमेश्वर से। So when you pray looking at God, don't look at your circumstances at all. और जब प्रार्थना करें तो प्रभु की ओर देखते हुए प्रार्थना करें, परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थना ना करें। Here Elijah continued to pray in spite of the negative answer that he got और from the servant. Yeah. यहाँ पर जो एलिया था वो प्रार्थना करता रहा, भले ही उसको नकारात्मक बातें पता चल रही थी बाहर से। But on the seventh time God answered. लेकिन 7वीं बार परमेश्वर ने उत्तर दिया। The servant came and said, a cloud as small as a man is rising from the sea. और उसने कहा कि समुद्र की ओर से छोटा सा बादल जो है वो एक उठ रहा है। Rain poured out after 3.5 years. और 3.5 वर्ष के बाद बारिश वहां शुरू हुई। Now someone read please James chapter 5 verse 17 and 18. James chapter 5 verse 17 and 18. Elijah was a man with a nature like us, and he prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the earth for 3 years and 6 months. Then he prayed again, and the sky poured rain, and the earth produced its fruits. Yes. एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। Now we know the rain stopped and rain came back just because a man prayed. और अब हम देखते हैं कि बरसात रुकी और फिर बरसात वापस आई क्योंकि एक मनुष्य ने प्रार्थना करी। And that's what the Bible says. और यही वचन में लिखा हुआ है। It is not an instant miracle. और ये एकदम से होने वाला कोई आश्चर्य कर्म नहीं था। It was an answer to his fervent prayer. और ये उसकी जो प्रार्थना थी उसका ये उत्तर था। Now we look at his faith. अब उसके विश्वास की बात करते हैं। Please turn to 1 King chapter 17 verses 1 to 4. Someone read please verse 4. Verse 2. Someone read please verse 2 to The 4. word of the Lord came to him, saying, Yeah, 2 to 4. Go away from here and turn eastward and hide yourself by the brook Cherith, which is east of Jordan. It shall be that you will drink of the brook, and I have commanded the ravens to provide for you there. तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नाम नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। Now here we see his strong faith and obedience. यहाँ पर हम उसके मजबूत विश्वास और आज्ञाकारिता को देखते हैं। Now God told him, I will feed you through ravens. परमेश्वर ने कहा कि मैं कौवों के द्वारा तुम्हें भोजन उपलब्ध कराऊंगा। But God did not tell him what kind of food the ravens will bring. परमेश्वर ने ये नहीं बताया किस प्रकार का भोजन वो कौवे लेके आएंगे। God also did not tell him how long he will have to stay there. और परमेश्वर ने ये भी नहीं बताया कि कितने लंबे समय के लिए उसको वहां रहना पड़ेगा। He didn't know anything about it. ये सब उसको नहीं मालूम था। But he obeyed God's word and left. लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। So many questions, there was no answer, but he still
trusted God and obeyed His word. इतने सवाल थे और जवाब भी नहीं थे उन सवालों के, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा किया, उसने आज्ञा का पालन किया। See, God just told him, "Go, and then I will feed you." He just left everything and went there to stay. परमेश्वर ने कहा कि जाओ और मैं तुम्हें भोजन दूंगा, और वो चला गया और उसने बात को माना। That is the kind of faith and obedience Elijah had. और ये उसका विश्वास और आज्ञाकारिता का उसका जीवन था। He did not doubt God when God said, "I ordered the ravens to feed you." उसने परमेश्वर पर संदेह नहीं किया जब परमेश्वर ने कहा कि मैंने तो कौवों को आदेश दिया है तुम्हें खाना लाके देने के लिए। It's a natural thing to doubt. How can God feed me through ravens, some birds? और स्वाभाविक रूप से इस पर शंका हो सकती है कि ये चिड़ियों और कौवों के द्वारा खाना कैसे आएगा। But he did not doubt because he knew his God had the power to feed him even through the ravens. लेकिन उसने संदेह नहीं किया, उसको ये मालूम था कि उसके परमेश्वर के पास सामर्थ्य है कि कौवों के द्वारा भी परमेश्वर उसको भोजन प्रदान कर सकता है। And his faith resulted in his obedience. और उसके इस विश्वास से उसमें आज्ञाकारिता उत्पन्न हुई। Faith and obedience go together. विश्वास और आज्ञाकारिता साथ साथ चलते हैं। If you cannot trust God, then you will not obey His words as well. अगर आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं करेंगे तो आप उसके शब्दों पे नहीं चल पाएंगे। When God says, "I will provide for you," He will provide for you. अगर परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्रदान करूंगा, तो फिर वो प्रदान करेगा। That is what whenever He call any person for His ministry, always says, "You come and I will provide for you." और इसलिए जब भी परमेश्वर किसी को बुलाते हैं सेवा के लिए, तो वो यही कहते हैं कि तुम आओ और मैं तुम्हें आवश्यकता की पूर्ति करूंगा। Very often, young boys and girls who say they are called by God but doesn't want to come out of their comfort zone. और बहुत अक्सर जवान स्त्री और पुरुष जो कहते हैं कि परमेश्वर ने उनको बुलाहट है, लेकिन फिर वो अपने वो जो उनका जो आराम का जीवन है उससे निकलना नहीं चाहते। But when God says, "I will provide," then definitely He will provide. लेकिन जब परमेश्वर कहते हैं कि मैं आवश्यकता की पूर्ति करूंगा, तो वो करेंगे। Today the mission organizations have a huge problem. आज जो मसीह जो संस्थाएं हैं, जो मिशन की संस्थाएं हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। Lot of young boys and girls do not want to come for full-time ministry. और यंग जवान जो लड़के हैं लड़कियां हैं, वो पूर्ण सेवा के लिए आगे नहीं आना चाहते, Because they do not want to step outside their comfort zone. क्योंकि वो जो उनका जीवन है जिसमें वो पले बड़े हैं, उससे वो बाहर नहीं निकलना चाहते। They don't have that kind of trust and faith that God will provide, God will take care of me if I go into His ministry. और वो विश्वास, वो भरोसा नहीं है कि अगर मैं जाऊंगा तो प्रभु इन सब चीजों की पूर्ति करेंगे। Actually, as a church, we have to pray for that many people in India would follow God for full-time ministry. और एक चर्च के रूप में हमें इस प्रार्थना को और करना है कि हमारे देश में जवान लोग जो हैं वो पूर्ण सेवकाई में और आगे बढ़ें। Here Elijah believed God and stepped outside from the comfort place that he was living. और यहाँ पर एलिया ने परमेश्वर पर विश्वास किया और जो उसका जीवन था उससे जिस आराम में वो था उससे निकल के वो बाहर आया। This scholars say he stayed in that place, Kerith Reuven, for more than one year or nearly 1.5 years. और विद्वानों का कहना है कि करीबन 1 से 1.5 साल तक वो उस स्थान पे रहा जहां पर कौवे उसको भोजन लाके दे रहे। God fed him through ravens. परमेश्वर ने उसको कौवों के द्वारा खाना प्रदान किया। Bread and meat and bread in the morning and meat and bread in the evening. और रोटी और मांस सुबह और शाम उसको मिलता था। Must have been really hard eating the same food for 1.5 years. 1.5 साल तक एक ही खाना खाना मुश्किल हो गया होगा। And he didn't even know how long he'll have to stay there. ये भी नहीं मालूम था कि कितने लंबे समय तक यहाँ रहना पड़ेगा। But Elijah did not move from that place because he knew God has placed him in that place. लेकिन एलिया उस जगह से नहीं हटा क्योंकि उसको मालूम था प्रभु ने उसको कहा है वहां रहने के लिए। He did not want to move out of the place unless God asked him to move out of that place. और वो वहां से नहीं निकलना चाहता था जब तक प्रभु उससे ना कहे कि वहां से निकलना है। It is very hard to eat the same food for more than 1 year. एक ही प्रकार का भोजन खाना 1 साल तक रोज बहुत मुश्किल है। No, it's very hard to go through the same routine for more than 1 year, 1.5 years, or 2-3 years in our lives. और एक ही दिनचर्या रोज 1-1.5 साल तक से गुजरना बहुत मुश्किल है। But we have to understand
God has placed me in that place, so let me continue in that place till God takes me out of that place. लेकिन हमें समझना है कि परमेश्वर ने हमें एक किसी स्थान पर रखा है और जब तक वो ना कहे तब तक उसी स्थान पर बने रहना है। Whichever places God has put us there, it is He who has put us there. So we have to be there patiently till God takes us out of that place. और जिस स्थान पर परमेश्वर ने रखा है तुम धीरज बनाए रखें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वहां रखा है, इसलिए वहां Well, whether you are going through some pain, whether you are going through difficult times, God has allowed it. Wait for Him to take you out of that place. अगर किसी समस्या से गुजर रहे हैं, दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो रुके रहें, परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वहां पे रखा है। He waited patiently in spite of the difficult time that he faced there. और वो धीरज के साथ उसने इंतजार किया, क्योंकि जानता था प्रभु ने उसको वहां रखा है। Because he knew God has told him to go and stay there. क्योंकि उसको मालूम था परमेश्वर नहीं बोला है वहां जाके रुकना है, रहना है। You know, verse 7 says, sometime later the brook dried up. और 7वें पद में लिखा है कि वो जो पानी की जो स्रोत था कुछ समय के बाद वो सूख गया, Because there was no rain in the land. क्योंकि बरसात नहीं हो रही थी वहां पे। You know, the brooks don't dry up in a single day. और ये जो पानी की जो स्रोतें होते हैं वो एकदम से एक ही दिन में नहीं सूख जाते हैं, It must have dried up little by little, little by little. और धीरे धीरे करके वो स्रोते से पानी जा रहा होगा। Elijah must have seen the brook is drying up. और एलिया ने देखा होगा कि ये जो पानी है ये धीरे धीरे कम हो रहा है, You know, he knew it is going to dry up completely. और उसको ये भी एहसास होगा कि एक दिन ये बिल्कुल सूख जाएगा, He knew there won't be any water for me to drink. और उसको ये भी एहसास होगा कि फिर मेरे पास पीने का पानी नहीं होगा। But he did not move out of that place. He did not run around to find another source of water. लेकिन वो वहां से गया नहीं और इधर उधर और पानी के स्रोतें ढूंढने के लिए वो नहीं गया। He stayed in the place because he knew God can take care of his future. और वो उसी जगह पे रहा क्योंकि उसको मालूम था कि परमेश्वर उसके भविष्य का ख्याल रख सकते हैं। You know, in our lives, we may have a lot of ravens and brooks. और हमारे जीवनों में बहुत से इस प्रकार के कौवे और स्रोते हो सकते हैं। We may have a lot of different sources of income. हो सकता है बहुत से अलग अलग आमदनी के स्रोत हों, But all these sources are temporary, uncertain source of income. लेकिन कि जितने भी आमदनी के सोर्स जो साधन हो सकते हैं ये अस्थायी साधन है, They are all just brooks and ravens in our lives. और एक प्रकार से स्रोते और एक कौवों के समान ही है। The ultimate source of our life is God and God alone. और जो मुख्य स्रोत हमारे जीवन का है वो केवल और केवल परमेश्वर है। One day the ravens may fly away and the brooks may dry up. एक दिन हो सकता है वो कौवे उड़ के चले जाएं और जो पानी की जो स्रोत है वो सूख जाए, But the ultimate source, God, never dries up. लेकिन जो हमारा जो मुख्य हमारा स्रोता है परमेश्वर, वो कभी सूखता नहीं, Because all other sources are temporary, unreliable, and uncertain. क्योंकि बाकी जितने भी स्रोते हैं वो अस्थायी हैं और भरोसा नहीं किया जा सकता। But God is the only source which is eternal, reliable, and certain. लेकिन परमेश्वर ही एकमात्र ऐसा स्रोत है जो अनंत काल के हैं, जिन पे भरोसा किया जा सकता है। In spite of all the blessings that we receive in our lives, our eyes should be always on God, the ultimate source. और भले ही हमें जितनी भी आशीषें इस जीवन में प्राप्त होती रहें, लेकिन हमारी जो आंखें हैं वो हमारे मुख्य स्रोत प्रभु के ऊपर लगी रहनी चाहिए। Elijah did not move out of that place because his source was not the brook but was God. It was God. और एलिया उस जगह से बाहर नहीं निकला क्योंकि उसको मालूम था कि उसका जो स्रोत है वो परमेश्वर है। He showed tremendous amount of faith in that place और उसने उस स्थान पे बहुत ज्यादा विश्वास and continue to stay in that place. और उस जगह पे वो बना रहा, रहता रहा। Remember, he was an ordinary man like you and me. और आपके और मेरी तरह ही वो एक साधारण व्यक्ति था, And God did not abandon him there. और परमेश्वर ने उसको वहां पे छोड़ा नहीं। You know, when the brook dried, not only Elijah saw it, but God also saw that. और जब वो स्रोता सूख गया तो एलिया ने न केवल एलिया ने उसको देखा, प्रभु को भी ये मालूम था कि वो स्रोता सूख गया। So whatever problem we go through, it's not just we see the problem, God also sees that. और जब किसी समस्या से गुजरते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही ने उस समस्या को देखा है, प्रभु भी उस समस्या को जानते हैं। Sometimes we have to patiently wait for him to take us out of that problem instead of running here and there. और कभी कभी हमें धीरज रखते हुए इंतजार करना पड़ता है, बजाय कि हम इधर उधर भागें।
You know, the Bhajan Singh in says, Psalm 121 says, he who watches over Israel neither slumbers nor sleeps. और भजन 121 में लिखा है कि जो मेरी ओर देखता रहता है वो ना कभी सोता है ना कभी ऊँघता है। The moment the brook dried up, God saw it and told him, arise and go to Sariphat. I have ordered a widow to feed you. और जब जैसे ही वो स्रोता सूख गया, प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि अब सारेफात वहां पे जाओ, एक विधवा क्यों मैंने आदेश दिया है वो तुम्हें खाना देगी। He says, I have already ordered your future. I given the order to feed you. और उसने कहा कि मैं तो पहले से ही एक आदेश दे चुका हूँ, तुम्हारा अगला खाना कहाँ से आएगा। He immediately obeyed. और फिर उसने उसका पालन किया। No, God never abandons us. परमेश्वर कभी हमें छोड़ता नहीं है। God never says, I have brought you thus far. Now it is up to you to take care of yourself. और परमेश्वर कभी ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें यहाँ तक ले आया, अब इसके आगे तुम अपना खुद रास्ता चुन लो। God always there. He never abandons us. परमेश्वर हमेशा साथ रहते हैं, कभी हमें छोड़ते नहीं हैं। He is always watching. वो हमेशा हमें देखते रहते हैं। He knows every situation in your life, हमारे सारे परिस्थितियों को वो जानते हैं। every problem, every need that you face in your life. हर समस्या, हर आवश्यकता को वो जानते हैं। He will be always there at the right moment. He never abandons us. और जब भी आवश्यकता होती है उस समय में हमेशा वो उपस्थित रहते हैं, कभी छोड़ते नहीं हैं। But the problem is we don't have the faith to wait for him to take us out of the situation sometimes. लेकिन समस्या है कि हमारे अंदर वो विश्वास नहीं उत्पन्न हो पाता है कि हम इंतजार करें कि प्रभु हमें उन समस्याओं से बाहर निकालें। You know, I've been working in the village for the past 35 years. गांव में मैं 35 वर्ष से जो कार्य कर रहा हूँ। Though we have done a lot of work, lot of the school has grown really up, really big. और जबकि हमने इतना काम कर लिया है और जो स्कूल था वो बहुत बड़ा बन चुका है, But I am still waiting for God to give us a breakthrough, big breakthrough. लेकिन मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ कि परमेश्वर अभी भी कोई बड़ा कार्य वहां पे करे। I want hundreds of people to come to the Lord. मैं चाहता हूँ कि कई 100 लोग परमेश्वर के पास आएं, It's not happening. लेकिन हो नहीं रहा है। But I have not lost my hope. I am just waiting and waiting for God to honor that. लेकिन मैंने आशा नहीं छोड़ी, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि परमेश्वर इस बात को पूरा करे। You know, sometimes we have to patiently wait in faith till God answers our prayers. और कई बार हमें बस प्रार्थना में होकर के और विश्वास में होकर के इंतजार करना पड़ता है कि जब तक परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर ना दे। He is never late. He always comes on time. कभी वो विलंब नहीं करते हैं, हमेशा समय पे आते हैं। Now please turn to 1 King chapter 18 verses 21 to 39. We don't need to read it. You can just to follow it. 1 King chapter 18 verse 21 to 39. In that portion again we see his faith. और यहाँ पर हम फिर से उसके विश्वास को देखते हैं। Again he challenges king and all the prophets of Baal. और यहाँ पर वो फिर से राजा को और जो बाल और उसके जो उसके नबी हैं उनको वो चुनौती देता है। And again there were about 400 prophets of Asherah as well. और अशेरा के भी करीबन 400 नबी वहां पे उपस्थित थे। Nearly 850 Baal and Asherah prophets, and the whole nation turned up on the Mount Carmel. और करमल जो पर्वत था वहां पर 850 उन लोग के सारे नबी और फिर सारा जो देश था वो लोग वहां पे आ गए। Now he called all the people to him and said, I am the only prophet of the Lord left. और उसने कहा कि मैं ही हूँ एकमात्र नबी जो परमेश्वर का है। And the Baal has 450 prophets. और बाल के तो 450 नबी। He get 2 bulls for us. और उसने कहा कि 2 बैल लेके आओ। Let the prophets of Baal take 1 and prepare it, put it on the altar, arrange all the wood, but do not set fire to it. और उसने कहा कि उसमें से एक जो बैल है वो बाल के नबी ले लें और उसको तैयार करें, वेदी पे बना दें, लेकिन उसको जलाना नहीं है। The same thing I will do with another bull. और दूसरे बैल के साथ यही कार्य मैं करूंगा। The God who answers with fire is the real God. और वो परमेश्वर जो अग्नि से उत्तर देगा वही असली परमेश्वर। The people said, okay. लोगों ने कहा ठीक है। Actually, what he was saying is, my God stopped the rain. Your God Baal could not do anything about it. और वहां पे बात यह है कि एलिया जो ये कह रहा है कि मेरे परमेश्वर ने बरसात को रोका, तुम्हारा परमेश्वर और देवी देवता कुछ नहीं करता।
Now let us see if your gods have the power to bring the fire from heaven. और अब देखते हैं कि तुम्हारे जो देवता हैं क्या वो आसमान से अग्नि बरसा सकते हैं। So the prophets of Baal brought a bull and cut it and prepared and put it on the wood and started praying to their Baal. और फिर जो जो बाल के जो नबी थे वो एक बैल को ले उसको बलिदान चढ़ा के और फिर वो अपने बाल देवता से प्रार्थना करने लगे। They started praying from morning till evening. सुबह से लेकर के शाम हो गई वो अपनी प्रार्थना करते रहे, They shouted and screamed. चिल्ला रहे थे वहां पे जोर जोर से They cut themselves with knives, और छुरियों से अपने को भी तकलीफ दे रहे थे, but nothing happened. लेकिन कुछ हुआ नहीं। Bible says no one heard, no one bothered about it. वचन में लिखा हुआ किसी ने सुना नहीं, किसी ने इस बात की परवाह नहीं करी। Then Elijah built an altar, उसके बाद एलिया ने एक वेदी बनाई, arranged the wood, लकड़ी को उसने लगाया prepared the bull and kept it on the wood, और उसने उस बैल को बलि करके उसको उस पर तैयार and किया he made a trench around the altar. और उसके चारों तरफ उसने एक थोड़ा सा गड्ढा खोद दिया था। No, he said something. He did something which is very interesting. He asked them to pour water on the sacrifice. और उसने कहा कि ये जो पूरी वेदी है, बलि है, इसके ऊपर पानी डाल दो। He said, ask them to pour 3 times water. और उसने कहा कि 3 गुना पानी इस पे डाल दो। The water even filled the trench. और वो पानी जो था वो गड्ढों में भी जाके भर गया। You know, all this arrangement shows his strong faith. और ये जितना भी उसने कार्य किया ये उसके मजबूत विश्वास को दिखाता है। He knew his God is the God of heaven and earth. उसको मालूम था कि उसका परमेश्वर जो है वो आसमान और जमीन का परमेश्वर है। He knew his God has the power to bring down the fire. उसको मालूम है कि उसके परमेश्वर के पास सामर्थ्य है कि वो आसमान से आग गिरा सकता है। He knew that his God will answer his prayer. और उसको मालूम था कि परमेश्वर उसका जो परमेश्वर है वो उसकी प्रार्थना का उत्तर दे सकता No, that is the kind of faith he had on the Lord. है। इस प्रकार का विश्वास उसका परमेश्वर पे था। He prayed 30 seconds prayer, 30 सेकंड की प्रार्थना उसने करी and the fire came down and consumed the sacrifices. और आसमान से आग गिरी और पूरी वेदी जो थी वो भस्म हो गई। Not only the sacrifice, it consumed wood and stone, even licked up the water on the trench. और ना केवल जो वेदी थी लेकिन जो पत्थर थे और जो पानी था सब उसमें जल गया। No, Elijah was an ordinary man, just like you and me. और एलिया एक साधारण व्यक्ति था आपके और मेरी तरह, But he had strong faith, prayer, and obedient life. उसका विश्वास मजबूत था, उसकी प्रार्थना का जीवन था और वो विश्वास आज्ञाकारी था। You know, when you have these 3, do you know something happens in your life? और जब ये 3 चीजें आपके जीवन में होती तब जानते हैं आपके जीवन में क्या होता है। You build relationship with God. तो प्रभु के साथ संबंध आपका और बनता है। Elijah did everything because of the relationship that he had with God. और एलिया ये सब कुछ करने पाया क्योंकि प्रभु के साथ उसका संबंध था। You know, if you read from 1 King chapter 17 to 2 Kings chapter 2, अगर आप पहले राजा 17 से और दूसरा राजा 2 तक पढ़ेंगे, you will see the kind of relationship that Elijah had with God. आप देखेंगे कि एलिया का कैसा संबंध था परमेश्वर के साथ। You know, in the beginning of the sermon, we saw Elijah's question, where is the Lord, the God of Elijah? और शुरू में हमने सवाल देखा था कि एलीशा ने सवाल किया था कि एलिया का परमेश्वर कहाँ है। Elisha wanted the God whom Elijah had. और एलीशा उसी परमेश्वर को चाहता था जो एलिया के पास था। After saying that word, he struck the water of Jordan, और ये कहने के बाद उसने यरदन नदी पे वार किया and the Jordan River divided into 2. और यरदन नदी 2 भाग में हो गई। God was there. परमेश्वर उसके साथ थे। He said, where is the God, the Lord of Elijah? God was definitely there at that moment. उसने कहा था कि कहाँ पे है एलिया का परमेश्वर, लेकिन वहां पे परमेश्वर तो उसके साथ उपस्थित था। You know, God has been there for hundreds of years ever since that time. और उस समय से लेकर के हमेशा सदैव परमेश्वर उपस्थित रहे हैं। He even came into this world to make a way for us to have a relationship with him. और वो हमारे संसार में भी आए ताकि एक
रास्ता बनने पाए, हमारे साथ संबंध जोड़ने का। He was with his disciples and followers and made them to do so many miracles. अपने शिष्यों के साथ थे, जो अपने अनुयायी थे उनके साथ थे, और इतनी सारी बातें उन्होंने करी, शिक्षा दी। You know, so God of Elijah has always been there. और इसलिए एलिया का परमेश्वर सदैव से हमारे साथ रहा है। The question is, where are the Elijahs? सवाल ये है कि जो एलिया हैं वो कहाँ है। No, God of Elijah is always there, but the Elijahs are missing. तो जो एलिया का परमेश्वर है वो तो सदैव सही है, लेकिन जो एलिया है वो कहाँ पे। And unfortunately, we do not have Elijahs today. और बदकिस्मती की बात है कि जो एलिया है वो आज नहीं उपस्थित है। We do not have Elijahs who can depend on God for everything. और ऐसे एलिया नहीं है जो परमेश्वर पे हर बात के लिए उस पे परमेश्वर भरोसा करने पाए। We do not have Elijahs who can spend time in God, spend time in prayer with God. और ऐसे एलिया नहीं है जो प्रार्थना में समय प्रभु के साथ बिता सके। We do not have Elijahs who is willing to obey God in every matter. और ऐसे एलिया नहीं है जो हर बात में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने पाए। You know, in today's situation, there are so many all over the world, so many servants are good who are there who cannot trust God for their needs. और आज ऐसे पूरे संसार में कितने ऐसे सेवक हैं प्रभु के जो अपनी आवश्यकताओं के लिए वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। It's a situation across the world. ये पूरे विश्व में देखने को मिलता है। People spend more time earning money than doing God's work. और लोग जो हैं वो ज्यादा समय बिताते हैं पैसा कमाने में बजाय कि परमेश्वर के कार्य में। By chance, if anybody has some gift of miracles, he start immediately start promoting that work, doing that business with that work, miracle. और अगर किसी के पास एक ऐसा वरदान है आश्चर्य कर्म का, तो फिर वो उसको प्रयोग करने लगता है एक व्यवसायिक रूप में पैसा कमाने के लिए। He start marketing it. That's what I was looking for. He starts marketing it. और वो तो उसके द्वारा जो है वो अपने उस वरदान को बेचना शुरू कर देता है। So we don't have Elijahs, but we need Elijahs. हमारे पास एलिया नहीं है, लेकिन हमें एलियाओं की आवश्यकता है। Our country is the same as Israel many thousands of years ago. हमारा देश भी है वो वैसे ही है जो हजारों वर्ष पहले जो जैसे इजराइल था। It's our duty to pray for God to raise up Elijahs. हमारा ये कर्तव्य है कि हम प्रार्थना करें कि एलिया को परमेश्वर तैयार। You know, Elijah, we do not know exactly where he came from, how he suddenly sprang up. हमें नहीं मालूम है कि वो निर्धारित रूप से कि वो कहाँ से आया और कैसे उसका सब शुरू हुआ। God prepared him somewhere in a corner and he suddenly brought him up. परमेश्वर ने उसको कहीं पर तो तैयार किया और फिर उसको लेके आया। So God may prepare somebody in some corner. One day he will come into light. और परमेश्वर कभी किसी को कहीं भी तैयार कर सकता है और फिर वो एक दिन सामने आ सकता है। Pray God will raise many Elijahs in our country. प्रार्थना करिए कि हमारे देश में परमेश्वर कई एलियाओं को तैयार करे। And try to be a Elijah yourself. और खुद भी एलिया बनने की कोशिश करें। I'm not saying that you should all be doing all the miracles that Elijah did. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे आश्चर्य कर्म जो एलिया ने करे वो भी आप कर पाए, But you can have the faith that Elijah had. लेकिन जो उसका विश्वास था वो आप में हो सकता है। You can have the prayer life that Elijah had. जो उसका प्रार्थना का जो जीवन था वो आप में हो सकता है। And you can have the obedience that Elijah had. और जो उसके आज्ञाकारिता का जीवन था वो आप में हो सकता है। Grow in your faith. अपने Like विश्वास Elijah. को बढ़ाएं एलिया की तरह, Grow in your prayer life. और प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़ें, Pray in obedience to God's word. और परमेश्वर के वचन की आज्ञा को मानते करते हुए पूरा करते हुए प्रार्थना करें, And build the relationship with God. और प्रभु के साथ अपने संबंध को और बढ़ाएं। Now God of Elijah is always there, परमेश्वर जो एलिया का परमेश्वर है वो सदैव हमारे साथ है, waiting for you and me to build a deep relationship with him. और इंतजार कर रहा है कि आप और हम कब कैसे उसके साथ एक गहरा संबंध स्थापित करेंगे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you for your word this morning, and we thank you for the life of Elijah, from which
we have learned a beautiful lesson this morning. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, खास तौर से धन्यवाद करते हैं एलिया के जीवन के लिए, जिसके द्वारा हमने कुछ बहुत ही सुंदर बातों को आज सीखा है. Help us, Lord, to think about the life of Elijah and how you enabled him to achieve such mighty things for your purposes. प्रभु जी, हम समझने पाए कि कैसे आपने उसको प्रेरित किया और उसको आपने सामर्थ दिया ताकि वो इतनी बड़ी बड़ी बातें आपके राज्य के लिए करने पाए. Help us, Lord, to follow the discipline that he took and the faith and the prayer life and obedience that he had in his life. प्रभु जी, हम सीखने पाए उससे कि जो अनुशासन उसके जीवन में था, जो प्रार्थना का और विश्वास जो उसका मजबूत था और जो आज्ञाकारिता का जीवन था, उससे हम भी सीखने पाए. Help us, Lord, that in our own situations we will be able to be those Elijahs. प्रभु जी, हम अपने परिस्थितियों में भी हम उस एलिया की तरह हम भी अपने परिस्थितियों में, अपने अड़ोस पड़ोस में इस कार्य को करने पाए. Thank you, Lord, for drawing us closer to yourself, and thank you, Lord, that you are always with us. प्रभु जी, धन्यवाद कि आप हमें अपने नजदीकी में खींचते रहते हैं, समीपता में लाते रहते हैं और आप सदैव हमारे साथ रहते हैं. In Jesus' name we ask. Amen. Amen. In response to hearing God's word, we'll sing I Need Thee.